लोकप्रिय परम आदरणीय जेपी नड्डा जी को इस माता त्रिपुरा सुंदरी के इस पावन भूमि पर हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। আমি অনুরোধ করছি এখন আমাদের রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রদেশ সম্মানীয় সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় আমাদের পরম আদরণীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতিকে উত্তরে এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে দিলেন। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী হ্যান্ডিক্রাফটের তৈরি একটি উপহার দিয়ে ওনাকে বরণ করে দিলেন। আমি আমাদের যারা সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন তাদের বলছি পুষ্পমালা দিয়ে আমাদের পরম আদরণীয় আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য সবাই মিলে একবার জোরদার করতালির মাধ্যমে ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। আমি এখন ভাষণ রাখার জন্য আমি অনুরোধ করব আমাদের প্রদেশ বিজেপির সম্মানীয় সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়কে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়জিকে আমরা উত্তরীয় বরণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করবো। আমাদের প্রদেশ বিজেপির সম্মানীয় সভাপতিকে আমি আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আজকে আমরা খুব সৌভাগ্যবান যে আমাদের এই মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর পুণ্যভূমিতে আমরা আমাদের আদরণীয় সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজিকে এখানে আমরা স্বাগত করতে পেরেছি। আজকে এই জনসভায় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান রাজ্যসভা সাংসদ আদরণীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, উপস্থিত রয়েছেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন মঞ্চে সম্বিত পাত্রাজি আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোঅর্ডিনেটর, আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের প্রদেশের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রভারী ডক্টর মহেশ শর্মাজি, উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় মন্ত্রীগণ রতনলাল নাথ মহোদয়, প্রণজিৎ সিংহ রায়, সুশান্ত চৌধুরী, টিঙ্কু রায়, শান্তনা চাকমা, সুধাংশু দাস, বিকাশ দেববর্মা, শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সহ আমার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কমিটি অফিস বেয়ারার এবং অন্যান্য নেতৃত্ব বিধায়ক বিধায়িকা থেকে শুরু করে যারা আজকের এই জনসভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতির বক্তব্য শোনার জন্য। কাজে আমি দুটি কথা বলেই আমার বক্তব্য আমি বিরাম দেব। বন্ধুগণ, আমরা জানি যে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের ভারতবর্ষের প্রায় 60টি বছর আমাদের এই ভারতবর্ষকে কোন সময় কংগ্রেস বা কোন সময় কংগ্রেসের সহযোগী কমিউনিস্ট বা অন্যান্য দল এই ভারতবর্ষকে শোষণ করেছে। আর 2014 সালে আমাদের এই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়ক মোদীজির নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা হয়, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা হয়, আর সেই আজকে 9 বছর পূর্বের পর আমাদের ভারতবর্ষে প্রমাণিত হয়েছে আর শোষণ আর শাসন নয়, এখন সেবক এই ভারতবর্ষের দায়িত্ব
যশস্বী প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন। বন্ধু, আমরা কোনোদিনও ভাবতে পারিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মোদীজি আসার পর গরিবদের জিরো ব্যালেন্সে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করা, গরিবদের বাড়িতে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা যোজনায় গ্যাসের কানেকশন, প্রত্যেক গরিবের বাড়িতে বিদ্যুতের কানেকশন, প্রত্যেক গরিবের বাড়িতে স্বচ্ছ ভারতের মিশনের মাধ্যমে শৌচালয় নির্মাণ, প্রত্যেক গরিবের বাড়িতে পাকা বাড়ি, প্রত্যেকের বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা একমাত্র যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি রয়েছেন বলেই, নরেন্দ্র মোদীজির মতো সেবক রয়েছেন বলেই আজকে গরিবদের ঘরে সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পৌঁছে গেছে। আজকে আমরা সৌভাগ্যবান, আজকে দেশের কৃষকরা কিষাণ সম্মান নিধি, কৃষকদের উৎপাদিত সামগ্রী এমএসপি ধরে সরকারের ক্রয়, সেই ব্যবস্থা আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি করেছে। তাই আমরা এই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির 9 বছর কালকে আমরা গত 1 মাস ব্যাপী আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি রাষ্ট্রীয় সভাপতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সমস্ত জায়গায় মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত করছি। আর তারই অঙ্গ হিসেবে আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য সফরে আজকে এই শান্তি বাজারে উনি উপস্থিত হয়েছেন, তাই উনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আমার আলোচনার দীর্ঘায়িত করছি না, সবাইকে একবার আমি অনুরোধ করব করতালির মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি আদরণীয় জেপি নাড্ডাজিকে একবার করতালির মাধ্যমে স্বাগত করার জন্য সকলকে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। একবার আমার সাথে মুষ্টি বন্ধ করে আমাদের রাষ্ট্র সভাপতি এখানে উপস্থিত হয়েছে, একবার মুষ্টি বন্ধ করে আমার সাথে বলেন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। সবাইকে নমস্কার। ধন্যবাদ আমাদের প্রদেশ বিজেপির সম্মানীয় সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়কে। এখন আমি আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের মাননীয় রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে। সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে এত সকালে সকালে এত বড় মাত্রা শান্তিবাজারে ভারতীয় জনতা পার্টি দেবতন্ত্র কার্যকর্তারা একত্রিত হয়েছে। আমাদের মধ্যে যিনি রয়েছেন উনি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাণ পুরুষ এবং ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি, যশস্বী নেতৃত্ব, যার জন্ম দেবভূমি হিমাচলে, সেই ব্যক্তি আজ আমাদের মধ্যে রয়েছেন আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি। আমাদের মধ্যে রয়েছেন ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়, প্রদেশ অধ্যক্ষ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় এবং মঞ্চে আসীন সমস্ত মন্ত্রীগণ, বিধায়কগণ, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব, আর বিশেষ করে এই ময়দানে কোনায় কোনায় ভারতীয় জনতা পার্টির পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে নিয়ে সমস্ত দেবতুল্য কার্যকর্তা বৃন্দকে আমি স্বাগত জানাই। আর তার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় জেপি নাড্ডাজিকে তার জন্য স্বাগত জানাবো। 2018-তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ত্রিপুরাতে 25 বছরের ক্রমাগত টানা কমিউনিস্ট সরকারকে পরাজিত করে শূন্য থেকে সরকার হয়েছে। আর দ্বিতীয়বার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে और नाड्डाजीর কৌশল ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে ভারতীয় জনতা পার্টির দ্বিতীয়বার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি এই ময়দান থেকে মাননীয় জেপি নাড্ডাজিকে আশ্বস্ত করতে চাই, 2024-এর নির্বাচনে ত্রিপুরা
নিশ্চিত উপহার দেবে। আমি আমার ভাষণ দীর্ঘায়িত করবো না। আমাদের মধ্যে মাননীয় জেপি নাড্ডাজি রয়েছেন। আমি একবার আমার সমস্ত কার্যকর্তাদের বলবো, একবার মুষ্টি বন্ধ করে হাত তোলেন, উপরে সবাই ডানে বামে যেখানে আছে চারু করে বলুন ভারত মাতা কি, জেপি নাড্ডা কি, জেপি নাড্ডা কি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে। এখন আমাদের সকলকে সম্বোধন করবেন এই রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়। সবাইকে নমস্কার। বলুনঘা মুম্বাই আজকের এই বিশাল যে জনসমাবেশ, সেই জনসমাবেশে মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় আদরণীয় এবং আমাদের গার্জিয়ান ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডাজি। উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে রেখেছেন, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান রাজ্যসভার এমপি শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। উপস্থিত আছেন MOS সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট শ্রীমতী প্রতিভা ভৌমিক মহোদয়া। উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা সরকারের শ্রী যিশু দেববর্মা মহোদয়। উপস্থিত আমাদের মাননীয় প্রধানী ডক্টর মহেশ শর্মাজি এবং এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের শ্রমিক পাত্রাজি, নর্থ ইস্টের কোঅর্ডিনেটর এবং সম্মানীয় ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত মন্ত্রীগণ এবং আমার সামনে উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় বিধায়ক, বিধায়িকাগণ এবং কর্পোরেটরগণ, মেয়র থেকে শুরু করে এখানে যারা এমনি আমাদের অন্যান্য যারা কার্যকর্তা এখানে উপস্থিত আছেন, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রিয় রাজ্যবাসী, দেশ আজ এক ঐতিহাসিক সুযোগের সন্ধিক্ষণে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির বিচক্ষণ নেতৃত্বে আধুনিক ভারতবর্ষ নতুন উদ্যোগে এগিয়ে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক যে 9 বছর পূর্তি সময়কাল দেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উদ্যম, দক্ষতা ও সুচিন্তিত যে পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে গত 9 বছর দেশে ব্যাপক সংস্কার ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটেছে। আগামী দিনে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ভাগ করা যাবে প্রাক মোদী যুগ এবং মোদীজির নেতৃত্বে বর্তমান ভারতবর্ষের সময়কাল। দেশের এই সময়কাল জনগণের কল্যাণ এবং সার্বিক উন্নয়নের সময়কাল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাবে। দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত অবহেলিত উত্তর পূর্বাঞ্চলে গত 9 বছর পেয়েছে অভূতপূর্ব উন্নয়নের সুযোগ। রেল, সড়ক, বিমান পরিষেবা থেকে শুরু করে সমস্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকে ত্রিপুরা থেকে আরম্ভ করে পুরো নর্থ ইস্টার্ন যে রোড, সেটা দেশের উন্নতম উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে আমাদের রাজ্য গত 9 বছরের সময়কালে সার্বিক উন্নয়ন, আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। আমি কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য তুলে ধরছি। কৃষি ক্ষেত্রে রাজ্যে PM কিষাণ যোজনায় বার্ষিক 6,000 টাকা করে 2,47,000-এরও বেশি কৃষক আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। এতে করে ব্যয় হয়েছে 533 কোটি 16 লক্ষ টাকা। এর ফলে আগে 2015-16-তে যে কৃষকদের আয় ছিল 6,580 টাকা, বর্তমানে তা 13,590 টাকা হয়েছে, যেটা আমাদের যে
চিন্তা ছিল এবং আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে দ্বিগুণ করব কৃষকদের আয়, সেটা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় প্রায় 10 লক্ষ 8 লক্ষ কৃষককে বীমার আওতায় আনা হয়েছে। 10 লক্ষ 8 হাজার কৃষককে বীমার আওতায় আনা হয়েছে, যাতে রাজ্যে বাজেট থেকে কৃষকের বীমার অংশীদারিত্ব 20 কোটি 83 লক্ষ টাকা বহন করা হয়েছে। বন্ধুগণ, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রায় 3 লক্ষ 7 হাজার কৃষককে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে, যার আর্থিক খরচ 1035 কোটি টাকা হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় 2018 সাল থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় 13 লক্ষ আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান করা হয়েছে এবং সেকেন্ড যেটা হয়েছে প্রায় 2 লক্ষের উপরে, এবং তাতে করে 130 কোটি টাকার আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পোষণ কর্মসূচিতে 2.5 লক্ষের বেশি প্রাথমিক স্তরে স্কুলের শিশু এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরের 1.5 লক্ষ শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাবনাকে পাথেয় করে রাজ্য সরকার মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে সরকারি চাকরিতে 33% পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। বন্ধুগণ, গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লক্ষ্যে প্রায় 4 লক্ষ গ্রামীণ মহিলাকে যুক্ত করে 50,000 স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। স্বসহায়ক দলগুলির মধ্যে 1100 কোটি টাকারও অধিক রিভলভিং ফান্ড ও ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলেজ স্তর পর্যন্ত আপনারা জানেন যে ছাত্রীদের টিউশন ফি মুকুব করা হয়েছে। নবম শ্রেণীতে পাঠরত প্রায় 1 লক্ষ ছাত্রীকে বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে সরকার আন্তরিক। বনাঞ্চলে বসবাসকারী নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত করতে বনাধিকার অ্যাক্ট চালু করা হয়েছে। ভারত সরকারের 17টি, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণে 17টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে 2 স্কুল ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। রাজ্যে 1400টিরও অধিক স্কুলে ককবরক ভাষাকে আমরা বিষয় হিসাবে চালু করেছি। আগরতলা সিঙ্গারবিল বিমানবন্দরকে মহারাজা বি বিক্রম বিমানবন্দর হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক টার্মিনাল বিল্ডিং হিসাবে চালু করা হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যে প্রায় 5 লক্ষ ঘর আমরা সুবিধাভোগীদের জন্য বরাদ্দ করেছি। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাজ্যে 2000 কিলোমিটার উপর রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। জল জীবন মিশনে রাজ্যে 4,30,000 উপর পরিবারে পানীয় জলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সৌভাগ্য প্রকল্প দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনার অধীনে প্রায় 2,18,000 পরিবারে প্রায় 690 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। বন্ধুগণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ধরনের দূরদর্শী উদ্যোগের ফলে দেশ আজ 5 ট্রিলিয়ন অর্থনৈতিক লাভে উন্নতি হয়েছে। এই জনমন্ত্রী শাসন আরো অনেক বছর বজায় থাকুক এবং প্রতিটি স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ এনে দিন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনকে পাথেয় করে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে আমাদের রাজ্যে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ আমাদের রাজ্যের মাননীয় मुख्यमंत्री 2014 से 2024 एक स्वर्णिम काल जो लिखी जा रही है आपके प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा, उस काल की गाथा को बयां करने के लिए अभी मैं विनम्रता से निवेदन करती हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय माणिक शाह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद विप्लव देव जी, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव बर्मन जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद रेवती जी,
हमारे सम्मित पात्रा जी, महेश शर्मा जी, यहां मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, हमारे विधायकगण और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो जब मैं त्रिपुरा की धरती पर आया हूं तो मैं सबसे पहले मां त्रिपुरा को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। त्रिपुरेश्वरी माता जी की आशीर्वाद लेकर अपनी बात को आप सबके सामने रखना चाहता हूं। और जब मैं साउथ त्रिपुरा में आया हूं, दक्षिण त्रिपुरा में आया हूं, तो यहां शांति बाजार में जो हमारा बहुत प्रसिद्ध काली मंदिर है, उसको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मुझसे पूर्व राजीव भट्टाचार्य जी ने, हमारे विप्लव देव जी ने और हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने, प्रतिमा जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने बहुत ही तफसील से किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और त्रिपुरा का भी विकास हुआ, देश का भी विकास हुआ, इन सारी बातों को बहुत गहराई से आपके सामने रखा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जो 9 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हम सब लोगों ने देखा है, उसमें हमने पाया है कि इन 9 सालों में भारत की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी के नेतृत्व ने बदल डाला है। इसको मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आप सबको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप 2014 के पहले का भारत देखो और 2014 के बाद का भारत देखो। 2014 से पहले कैसा भारत था? 2014 से पहले भारत था जिसका नाम भ्रष्टाचारी देशों में सम्मिलित था। हम एक भ्रष्टाचारी देश कहलाते थे। हर दिन एक नया स्कैंडल, एक नया स्कैम, एक नया स्कैम। पनडुब्बी खरीदो तो घोटाला, हेलीकॉप्टर खरीदो तो घोटाला, गन खरीदो तो घोटाला, एरोप्लेन खरीदो तो घोटाला। ये आकाश में जो किरणों के माध्यम से ये 4G, 5G, 3G चलता है, इसमें भी घोटाला। खनिज में घोटाला, लोहे में घोटाला, कोयले में घोटाला। यूपीए की सरकार ने 2014 में न जमीन छोड़ा, न आकाश छोड़ा, न पाताल छोड़ा, तीनों जगह भ्रष्टाचार ही किया। ये यूपीए की सरकार हमको देखने को मिली। ऊपर से निर्णय न लेना ही निर्णय है, पॉलिसी पैरालिसिस। उस समय का रक्षा मंत्री कहता था कि बॉर्डर पर सड़क न बनाना यही हमारा डिफेंस है, यही हमारी रक्षा है कि न सड़क होगी और न ही दुश्मन आ पाएगा। ये भूल जाते थे कि चाइना ने हमारे बॉर्डर तक सड़क बना ली है, उसको मिनट लगेगा घुसने में। लेकिन आज मोदी जी ने 13,125 किलोमीटर की सड़क बनाकर सारे बॉर्डर को सुरक्षित कर दिया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। तो एक समय था भ्रष्टाचारी देश,
निर्णय न लेने वाला देश, अनिर्णय की स्थिति में रहने वाला देश, किलोमीटर की सड़क बनाकर सारे बॉर्डर को सुरक्षित कर दिया है, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो एक समय था भ्रष्टाचारी निर्णय लेने वाला देश, मजबूत देश, कड़वे फैसले करने वाला देश, आम आदमी को राहत मिल सके इसके लिए काम करने वाला देश बनाया तो मोदी जी ने बनाया, इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। और इसीलिए जहां भ्रष्टाचार था उससे देश को निकाल करके विकासवाद के साथ, जहां वंशवाद था तो वंशवाद से निकाल करके विकासवाद की ओर ले गए, जहां वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स से निकाल करके देश को तरक्की की ओर ले जाने का काम और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को मोदी जी ने सामने ला करके खड़ा किया। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ सरकार बदली, सरकार के साथ साथ सरकार के काम करने की संस्कृति भी बदल डाली, इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, आज यहाँ हमारे जो भी नेता खड़े होते हैं छाती ठोक के बोलते हैं हमने ये कहा था, हमने ये किया है, हमने ये कहा था, हमने ये किया है, ये हम करेंगे, ये कर रहे हैं और ये भी करके देंगे, इस बात को कहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। और इसीलिए जब हम विकास की बात करते हैं, आपको जान करके खुशी होगी कि सड़कों के लिए, रोड्स, नेशनल हाईवे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 18 लाख करोड़ रुपए 2014 से 2022 के बीच में खर्च हुआ है और इस साल 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। रेलवे लाइन, रोड, अब मैं अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं, एक समय में प्रतिदिन 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था एक दिन, और आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से नेशनल हाईवे पिछले 9 सालों में 54,000 किलोमीटर बने, 54,000 किलोमीटर, और त्रिपुरा में पिछले 6 सालों में 300 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन करके तैयार हुआ है, ये भी हमको याद रखना है। ये जो अगरतला से शांति बाजार तक और ये जो साउथ त्रिपुरा है, अब ये नेशनल हाईवे है कि नहीं है? ये नेशनल हाईवे किसने दिया? 2016 में मोदी जी ने दिया और नितिन गडकरी जी ने काम करा करके ये भी आपको दिया, और आज 6 नेशनल हाईवे आज त्रिपुरा में उनका काम चल रहा है और वह आपको त्रिपुरा को दिया गया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो 37,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है, यानी अब 37,000 किलोमीटर की सड़क रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिक की ट्रेन दौड़ती है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और अगरतला से अखुरा रेल लिंक, जिसका इंडियन साइड जो भारतीय साइड है उसमें 5.40 किलोमीटर 460 किलोमीटर, ये टोनियर, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारा डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से इसका काम हुआ है, और 6.8 किलोमीटर ये बांग्लादेश में जो रेलवे ट्रैक बन रहा है इसका खर्च मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने दिया है, और अगरतला से कलकत्ता जाने का समय 31 घंटे से घट करके 10 घंटे हो जाएगा। यह विकास की नई कहानी की जा रही है। यह है बदलता भारत। पहले हम बांग्लादेश में के माध्यम से सोच नहीं सकते थे, आज हमने रेलवे ट्रैक के काम को आगे बढ़ाया। आपको जान करके खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा। खुशी ये होगी कि आज 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट बने हैं, 74 एयरपोर्ट, और उसके साथ साथ 70
साल में 74 एयरपोर्ट बने और मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट बने हैं। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट में 7 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। सभी कैपिटल को जोड़ने का प्रयास हो रहा है या कैपिटल के नजदीक एयरपोर्ट बनाने का इंतजाम हो रहा है। अगर हम गांव की सड़क बोले तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, पिछले 9 साल में 3,28,000 सड़क ऑल वेदर रोड गांव को जोड़ने के लिए बनी है और 61,000 गांव हैबिटेशन को पक्की सड़क से जोड़ने का काम पिछले 9 साल में हुआ। अगर मैं शांति और सुरक्षा की बात करूं तो मैंने पहले कहा 13,125 किलोमीटर, क्षमा करिएगा 13,525 किलोमीटर बॉर्डर रोड बन करके तैयार हो गया है और एक नहीं 2 ब्रिज बन करके एक तरफ से जाने का एक तरफ से आने का हर मौसम में 2 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर अपनी फौज को बॉर्डर पर पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये भी हमको ध्यान रखना। आप सबको मालूम ही है, हम नारा लगाते थे एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी। मोदी जी ने 6 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में खड़े होकर के अमित शाह जी की रणनीति ने काम किया और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने तय किया और धारा 370 को धाराशाही कर दिया और कश्मीर को संपूर्णता के साथ भारत से जोड़ दिया। ये भी हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो हमारे यहां विकास की दृष्टि से डिफेंस के प्रोडक्शन में 99% एक तो 7,500 करोड़ रुपए का जो प्रोक्योरमेंट है वो हुआ है और उसी तरीके से 2,71,000 का 2022-23 में प्रोक्योरमेंट हो रहा है डिफेंस प्रोडक्ट्स का और जिसमें से 99% भारत की इंडस्ट्री बना रही है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जाने का विषय है। आपको मालूम होगा चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, चाइना की फौजें खड़ी रही तो सामने भारत की फौज भी डट से खड़ी रही और उनको वहीं पर रोका। ये भी आपको मालूम। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब चीजें आप जानते हैं। कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, घर में घुस करके मारेंगे। और ये था सर्जिकल स्ट्राइक जो आपने देखा, ये था एयर स्ट्राइक। ये भी आपने देखा टेररिज्म का, इसको कहते हैं कि नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अगर मैं बात करूं आत्मनिर्भरता की ओर तो आज भारत AK-203 बनाने लगा है, असॉल्ट राइफल बनाने लगा है, उसी तरीके से प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाने लगा है, उसी तरीके से INS विक्रांत भारत ने लड़ाकू जहाज बना करके दिखा दिया है और भारत की फौज में वो बेड़ा में वो शामिल हुआ है। ये भी हमको ध्यान रखना। अगर मैं सुशासन की बात करूं, क्योंकि हम जब 9 साल मना रहे हैं तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये जो सुशासन की हम बात करते हैं, एक समय में भारत का प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी बोलते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे पता नहीं किनके हाथों में लग जाते हैं और सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं, सिर्फ 15 पैसे। आज बदलता भारत मोदी जी के नेतृत्व में 22,40,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में, बैंक में पहुंचा दिया गया। ये बदलता भारत है। लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहुंचाया गया। कितना? 22,40,000 लाख करोड़, जिसमें से 2,20,000 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए ये जो पिलफरेज हो जाता था, ये जो बीच में बिचौलिए खा लेते थे, इसको भी रोकने का काम किया है। कितना? 2,20,000 लाख करोड़, इतना मोदी जी ने बचाया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। ये है सुशासन। आज कॉमन सर्विस सेंटर 5,47,00,000
बने हैं और 2.5 लाख गांव में हमारा नौजवान कॉमन सर्विस सेंटर खोल के खड़ा है। और आप किसी भी गांव में कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार की तमाम योजनाओं का उपयोग आप कर सकते हैं और उससे आप डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बदलता भारत कैसा है? बदलता भारत ऐसा है जिसमें हम 10वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था थे, 10वें नंबर की। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस ब्रिटेन ने, जिस इंग्लैंड ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। स्टील के मैन्युफैक्चर में, इस्पात के मैन्युफैक्चर में हम 4थे नंबर पर खड़े थे, आज हम 2रे नंबर पर खड़े हैं। अगर हम बात करें टॉय इंडस्ट्री में, आपको याद होगा मन की बात में मोदी जी ने कहा था कि विदेशी खिलौने मत खरीदो, भारत के खिलौनों पर विश्वास रखो। आपको जान करके खुशी होगी कि खिलौनों का खपत नहीं, खिलौनों का एक्सपोर्ट यानी दूसरे देशों को बेचने का काम भारत में तिगुना बढ़ गया है, 3 टाइम्स बढ़ गया है। और अब भारत खिलौने ले नहीं रहा है, खिलौने बाहर के देशों को बेच रहा है या परिस्थिति आगे करी। उसी तरीके से जापान जो गाड़ियों के लिए जाना जाता था, कार के लिए, उसको पिछाड़ करके अब भारत 3rd लार्जेस्ट मार्केट ऑटोमोबाइल की बन गई है, 3री लार्जेस्ट मार्केट ऑटोमोबाइल की बन गई। और उसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहां $84.8 बिलियन फॉरेन का इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ा है। यह भी हमको समझने की जरूरत है। 50% हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में एक्सपोर्ट बढ़ा है। और इसी तरीके से हमारे विकास के नए नए आयाम बने हैं। आपको जान करके खुशी होगी, आपने कभी सोचा था? मुझे कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, याद नहीं है, शायद मुझे समृद्धि जी बता दे, लेकिन शायद 470 एयरबस हमने ऑर्डर किया है। 470 एयरबस भारत में ऑर्डर किया, 470। कभी आपने सोचा है हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा? ये कल्पना मोदी जी ने करके दिखाई है। आखिर ये 470 एयरबस क्यों खरीदे जा रहे हैं? इसलिए कि भारत के लोगों में ये ताकत पैदा हो रही है कि वो हवाई जहाज का सफर कर सके और उसके लिए 470 बसें। और ये जब 470 बसें खरीदी जा रही है तो जो बाइडेन कहते हैं यह एक लैंडमार्क ऑर्डर अमेरिका को मिला है। इससे हमारे 44 स्टेट्स के लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये जो बाइडेन कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। उसी तरीके से रोल्स रॉयस के जो इंजिन हैं वो एयरबस खरीदेगा और इसके लिए यूके के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि समय 2050 तक भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये ऋषि सुनक बोलते। और उसी तरीके से हमारे विकास के दृष्टि से इकोनॉमिक पावर के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, वो भी हमको देखने को मिलता है। मित्रों, मैं यहां आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं मेरे आंकड़े मीडिया वाले नोट कर लें और सही मायने में भारत की तस्वीर लोगों के सामने रखें। ये जो कांग्रेसी भाई है ना और ये सीपीएम के ये अनपढ़ लोग, क्षमा करिएगा मैं शब्द बोल रहा हूं अनपढ़, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। जहां खड़े होते गरीबी, बेरोजगारी, अरे रोजगार के बारे में तुमने बता दिया। आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही है। अगर रोजगार नहीं होता तो ये इकोनॉमी कैसे बनती? अगर हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तो रोजगार के साधन देने का काम भी भारत कर रहा है, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन इन अनपढ़ लोगों को मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में कोरोना आया, देश में दुनिया में सब जगह मंदी हुई, दुनिया में रूस का और यूक्रेन का झगड़ा हुआ और ये सप्लाई चेन सबका टूटा, सभी को आर्थिक समस्या आई। लेकिन इस आर्थिक समस्या में मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये सबसे तेज गति से
आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने वाला जीडीपी का देश है, ये भी समझो। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, नोट कर ले मेरे मित्र पत्रकार भाई, इंडिया की जीडीपी है 8.7% के हिसाब से ग्रो कर रही है, 8.7%। मॉर्गन स्टैनली ये बैंक अपनी रिपोर्ट में कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है दुनिया में, ये मॉर्गन स्टैनली बोलता है सबसे मजबूत है। और ऑस्ट्रेलिया की विकास दर क्या है, जीडीपी क्या है, 2.2, इंडिया 8.7, ऑस्ट्रेलिया 2.2%, जर्मनी 2.6%, साउथ कोरिया 4.1%, कनाडा 4.5%, ब्राजील 4.6%, साउथ अफ्रीका 4.9%, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 5.9%, फ्रांस 6.8%, यूनाइटेड किंगडम 7.5% और इंडिया 8.7% पे खड़ा है। ये हमको ध्यान है। अब मैं अगर महंगाई की बात करूं, इन्फ्लेशन की बात करूं, ये अनपढ़ कांग्रेसी भाइयों को समझा देना कि महंगाई बोलते हैं ना, इनकी महंगाई हमने देखी है। आप बड़े महंगे हो गए हो आज, आपको नहीं पता चलता कि सच्चाई क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्फ्लेशन इंडिया 4.2% पर खड़ा है, यूनाइटेड स्टेट्स 4.9% पे खड़ा है, फ्रांस 5.1% पर खड़ा है, यूरो एरिया 6.1% पर खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया 7% पर खड़ा है, इटली 7.69% पर खड़ा है, यूनाइटेड किंगडम 8.7% पर खड़ा है। और खाद्य सामग्री का इन्फ्लेशन, महंगाई, खाने के सामान की महंगाई, वो भी जोड़ लो, इंडिया 2.9% पर खड़ा है, 2.91%। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 6.7% पे खड़ा है, फ्रांस 14.7% पे खड़ा है, यानी फ्रांस में महंगाई 14.7% से बढ़ रही है, जर्मनी 14.5% से खड़ा है, यूरोपियन यूनियन 16.4% से खड़ा है, स्वीडन 16.8% से खड़ा है, यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड 18% पर खड़ा है, पाकिस्तान 48.65% पर खड़ा है और भारत 2.91% पर खड़ा है। ये है बदलता भारत। मैं चाहूंगा इन आंकड़ों को मेरे पत्रकार बंधु जरा दुनिया की तस्वीर दिखाओ, क्या पाकिस्तान, क्या श्रीलंका और क्या भारत और क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, क्या इटली, क्या जर्मनी, क्या स्विट्जरलैंड, भारत कहां पर खड़ा है? आज भारत आर्थिक जगत में, दुनिया की नजर में ये ब्राइट स्पॉट है, तो वो भारत है, भारत है, भारत। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कल परसों तूफान हटा, आपने दुनिया में भी तूफानों की तस्वीरें देखी होंगी। आपने देखा होगा चीन में किस तरीके से शहरों में पानी आया है, आपने देखा होगा अमेरिका में किस तरीके से जंगल जल रहे, आपने टीवी पर देखा होगा किस तरीके से तूफान मकानों को चिथड़े उड़ा रहा है। लेकिन ये भारत है, बदलता भारत, जहां तूफान आने से पहले हमारे साइंटिस्ट और हमारी इक्विपमेंट्स इतनी मजबूत मोदी जी ने लगाई है कि हमें 1-1.5 सप्ताह पहले पता चल जाता है कि तूफान कब आएगा, कहां आएगा, कितनी जोर से आएगा और उसकी कैसे व्यवस्था करनी है। और आप देखिए परसों तूफान आया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 हफ्ते पहले से तैयारी की, 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, 1 लाख लोगों को। उसी तरीके से यह भी बताया गया कि 125 किलोमीटर की स्पीड से आएगा। पेड़ उखड़ गए, प्रकृति पर किसी का जोर नहीं, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं होने दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर को ध्यान में रखकर के हमको ध्यान में रखना चाहिए। पूरी तैयारी की गई, एनडीआरएफ को लगाया गया और प्रदेश और सेंटर के कोऑर्डिनेशन के कारण यह तूफान जो तबाही मचा सकता था उसको सुरक्षित तरीके से लोगों को बचाने का काम किया, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ है। आज
ये बदलता भारत की तस्वीर है। इतना बड़ा चक्रवात है, इतना तूफान है, 125 किलोमीटर की माध्यम से है, 1 लाख लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जाए, एनडीआरएफ को लगाया जाए, केंद्र और राज्य के द्वारा कोऑर्डिनेशन में काम किया जाए और जान माल की रक्षा की जाए। ये बदलता भारत है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी हमारे राजीव भट्टाचार्य जी आपसे चर्चा कर रहे थे। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, महिला, सबको अगर ताकत दी है, सशक्तिकरण किया है, तो मोदी जी के नीतियों ने किया है। यह हमको ध्यान रखना। 4 करोड़ से ज्यादा घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बने हैं। कितने? 4 करोड़। और 3,50,000 घर त्रिपुरा में बने, 3,50,000 घर। और मुझे याद है वो एयरपोर्ट के बगल में बॉर्डर के गांव में मैं गया था, लंकापुरा में गया था मैं। वहां मैंने चाय पी थी। हमारा एक गरीब भाई था, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला था। घर देख करके मेरा दिल इतना खुश हुआ। 2 कमरे, बेडरूम, 1 किचन अलग से, 1 शौचालय अलग से, किचन में गैस का चूल्हा, सामने कोर्टयार्ड, ऊपर छत, पक्का मकान, और घर का मालिक नहीं, मालकिन उसकी मालिक। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना, यह है महिला सशक्तिकरण। कितना दिया? 4 करोड़ घर, 3,50,000 त्रिपुरा में। मित्रों, ये जो हमारे एमएलए साहिबान बैठे हैं ना, ये बड़े खुशनसीब हैं कि इनको प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा मिला है। मैं 1993 में 1993 में पहली बार एमएलए बन गया था। मैं आपको घटना सुनाना चाहता हूं। मेरा वीडियो आता था मेरे पास, मैं कहा साहब आपको खुशखबरी सुनानी है, सुनो। कहता था कि आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 1 घर मिला है, बताइए किसको दे। मैं कहता था मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। मैं सोचता था मैं कैसे न्याय करूंगा, 1 अनाथ 100 बीमार, कैसे ही इंदिरा आवास को मैं बांटूंगा, किसको दूंगा, किस गरीब को मैं उसके आंसू पहुंचूंगा। 1 पंचायत में 1 घर 1 साल में। ये तस्वीर हमने देखी है। मैं वीडियो को बोलता था जो सबसे गरीब आपको लगता है उसको आप दे दो, मैं फैसला नहीं करता हूं। ये दिन मैंने देखे हैं। और आज ये खुशनसीब लोग हैं जो 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में एक पंचायत में 20-20 घर देने के हकदार बनते हैं और गरीबों का भला करते हैं। ये हमको सफलता समझना। उसी तरीके से आज 11 करोड़ शौचालय बन गए, 12 करोड़ शौचालय बन गए। गांव में बहनें सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी। आपने वो दिन याद नहीं है? सिर्फ दैनिक नित्य कर्म के लिए उनको इंतजार करना पड़ता था और झुंड के झुंड एक साथ वो गांव से बाहर निकलती थी अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए। आज 11 करोड़ से ज्यादा घर शौचालय इज्जत घर बने। ये इसका मतलब ये समझो कि कैसा भारत था 9 साल पहले, जहां 11 करोड़ बहनें अपनी इज्जत के लिए मोहताज थी। उनको अगर इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये भी हमको ध्यान में रखना। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत का, और यहां भी आपने स्कीम चलाई, तो स्कीम का नाम क्या है? आयुष्मान भारत। ये सब जितने बैठे हैं एमएलए एमपी, ये जितने, इन सब लोग आज से 7-8 साल पहले चिट्ठी लिखा करते थे, प्रधानमंत्री जी मेरे इलाके में फलाना निवासी फलाना बहुत गरीब है, इसका बाईपास सर्जरी होनी है, 2 लाख रुपए लगना है, कृपया प्रधानमंत्री राहत कोष से देने की कृपा करें। लिखते थे नहीं लिखते थे? मुख्यमंत्री को लिखते थे, मुख्यमंत्री जी फलाने की किडनी का ऑपरेशन होना है, 5 लाख रुपए खर्च होंगे, कृपया अनुदान देने की कोशिश कीजिए। अब मुख्यमंत्री जी 2 लाख देते थे, बाकी 3 लाख कहां से आए? 2.5 लाख देते थे, कहां से आए? ये सारी स्थितियां थी। लेकिन मोदी जी ने
10 करोड़, मेरे पत्रकार भाई नोट कर लेना, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, गरीब लोग, जाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर गरीब लोग। कौन? रिक्शा वाला, रेडी वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष हेल्थ कवरेज देने का काम, स्वास्थ्य के गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए देने का काम किया तो मोदी जी। आज कम से कम 80 करोड़ रुपए का इस तरीके से लोगों की राहत मिली है, वह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो नमक मिल रहा है कि मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं सुनना चाहता हूं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मित्रों, ये गरीब कल्याण अन्न योजना सिर्फ गरीब कल्याण अन्न योजना नहीं है, इसके कारण भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से कम हो गई और अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और हम नहीं बोल रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहे हैं। ये दुनिया की तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने देखते हैं। भारत की तस्वीर मोदी जी ने बताइए, दुनिया में भारत की छवि बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री को बॉस बोलता है कि नहीं बोलता? पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री जी के पांव छू करके अभिवादन करता है कि नहीं करता? न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री मिलने के लिए न्यूजीलैंड से फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में आकर मिलता है कि नहीं मिलता? तमाम देश, दुनिया के तमाम देश दुनिया के सबसे बड़े सम्मान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हैं कि नहीं करते हैं? दुनिया में भारत की छवि बनती है कि नहीं बनती है? अब ये यूक्रेन की लड़ाई हुई, मोदी जी ने पुतिन से बात करके युद्ध रुकवाया था कि नहीं रुकवाया था? मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात करके युद्ध रुकवाया था कि नहीं रुकवाया था? और 22,000 बच्चों को सुरक्षित तिरंगा झंडा लेकर के भारत स्वदेश पहुंचाया। ये बदलता भारत है, ये भी हमको ध्यान रखना है। मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात करके युद्ध रुकवाया था कि नहीं रुकवाया था? और 22,000 बच्चों को सुरक्षित तिरंगा झंडा लेकर के भारत स्वदेश पहुंचाया। ये बदलता भारत है, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपको कह सकता हूं और बहुत सी चीजों को आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन हाँ, समय का अभाव भी है। आपने मेरी बात बहुत सुनी है, लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीएम, इन तीनों का अंतर क्या है? सबसे पहले कांग्रेस समझो क्या है। कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है नॉन गवर्नेंस, कुशासन, कांग्रेस का मतलब है पॉलिसी पैरालिसिस, कांग्रेस का मतलब है भाई भतीजावाद, निपोटिज्म, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, कांग्रेस का मतलब है फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कांग्रेस का मतलब, और सीपीएम का मतलब क्या है? सीपीएम का मतलब है टारगेटेड किलिंग, सीपीएम का मतलब है लूट ऑफ गवर्नमेंट फंड, सीपीएम का मतलब है लॉलेसनेस, सीपीएम का मतलब है कोलैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सीपीएम का मतलब है लूट ऑफ राशन, सीपीएम का मतलब है फिजिकल लिक्विडेशन ऑफ योर पॉलिटिकल अपोनेंट, पॉलिटिकल राइवल्स। और बीजेपी का मतलब क्या है? बीजेपी का मतलब है डेवलपमेंट, बीजेपी का मतलब है हाईवे, बीजेपी का मतलब है रेलवे, बीजेपी का मतलब है एयरवे, बीजेपी का मतलब है इंटरनेट, बीजेपी का मतलब है विकास, बीजेपी का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, बीजेपी का मतलब है शिक्षा, बीजेपी का मतलब है स्वास्थ्य, बीजेपी का मतलब है गरीब कल्याण, बीजेपी का मतलब है गरीब
का मतलब है महिलाओं का उत्थान, बीजेपी का मतलब है युवाओं को ताकत देना, बीजेपी का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका। इसलिए मित्रों, आप साफ साफ तस्वीर समझ लो, कांग्रेस किन बातों के लिए खड़ी होती है, सीपीएम ने आपको किस तरीके का राज दिया, और आज पहले विप्लव देव और अडवाणी साहब के नेतृत्व में त्रिपुरा को मोदी जी के आशीर्वाद से किस तेजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखकर आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ आपको 9 साल की मैं बधाई भी देता हूं। और ये ध्यान में रखिए कि हमको देश को मजबूती लाने के लिए स्टेबिलिटी लानी होगी, मोदी जी को ताकत देना होगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देनी होगी, कमल को खिलाना पड़ेगा और कमल को खिला करके त्रिपुरा को आगे बढ़ाएंगे, देश का योगदान बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय त्रिपुरा। और हम सब आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার